کے روبرو پہنچتا ہوں، ان کو آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ دوستو، ان چند مصروں کی روشنی میں میں ان کو مائی پر آواز دینے جا رہا ہوں کہ یہی ہے حاصل ایمان، یقین ہمارا ہے، یہی ہے حاصل ایمان، یقین ہمارا ہے، نبی کا روضہ بہشت بری سے پیارا ہے، سمجھ لے دنیا ہدایت کے راستے کیا ہے، خدا نے اس لیے قرآن کو اتارا ہے، خدا نے اس لیے قرآن کو اتارا ہے۔ اس سبز گنبد کے مناظر طیبہ جا کر دیکھیے، ہیں فرشتوں کے وہاں موجود لشکر دیکھیے، سرور کونین ہیں اور امام الانبیاء پیٹ پر باندھے ہیں، پھر بھی تین پتھر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وقال تعالی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه عن والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ طیبہ کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک کو یہودی کہتے تھے، دوسرے کو منافق کہتے تھے، اور تیسرا طبقہ مسلمانوں کا طبقہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتا تھا کہ یہ سامان ہمارا ہے، منافق کہتا تھا کہ یہ سامان ہمارا ہے۔ چنانچہ بات آگے بڑھی اور وہ لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہودی نے اپنا مقدمہ سنایا، منافق نے اپنا مقدمہ سنایا۔ یہودی تو بہرحال یہودی تھا، منافق بہت خوش ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہماری شکل دیکھیں گے، دیکھنے میں تو بظاہر میں مسلمان ہوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری داڑھی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے اندر لچک نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منہ دیکھی نہیں کرتے تھے، حق کو حق کہتے تھے، چاہے تختے دار کے اوپر چڑھ کر کہنا پڑے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ منافق کو بہت برا لگا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ آپ نے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، آپ کو ہماری داڑھی نظر نہیں آئی، آپ کو ہماری ٹوپی نظر نہیں آئی، آپ کو ہمارا امامہ نظر نہیں آیا، میں دن رات آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ آپ نے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جو دن رات اسلام کی جڑیں کاٹنے پر تلا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن منافق چاپلوس تھا، منافق نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ منافق نے کہا کہ چلیے ہم عمر فاروق سے فیصلہ کراتے ہیں۔ وہ لوگ عمر فاروق کے دربار میں پہنچے، دروازے پر پہنچے، دستک دی، کنڈی کٹکھٹائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد فرمایا بھائی کیسے آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے کہا
अमीरुल मोमिनीन, हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फैसला करवा लिया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे हक में फैसला कर दिया, लेकिन ये मुनाफिक मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया। यहूदी ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया। हजरत उमर ने फरमाया तो फिर क्यों आए हो? तो कहा कि आप फारूक हैं, आप बेहतर फैसला करते हैं, इसलिए हम आपके पास फैसला कराने आए हैं। चुनांचा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया है तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मुनाफिक ने इसरार किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रुकिए, ठहरिए, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर गए और तलवार लेकर आई और उस मुनाफिक की गर्दन कलम करने के बाद फरमाया कि जो इस ज़मीन के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राज़ी नहीं, उसे इस रुए ज़मीन के ऊपर रहने का कोई हक नहीं। चुनांचा अल्लाह तबारक ताला को हजरत उमर की ये आदत पसंद आई। अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए आयत का एक टुकड़ा नाजिल फरमाया, जो हमने खुतबा के दौरान तिलावत किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि कसम खुदा की वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई फैसला कर दे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फैसले पर उसको कबूल करके अपनी पेशानी को मोहम्मद के सामने अगर कोई खम न कर दे, वो आदमी शुरू ज़मीन के ऊपर मुसलमान नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल से और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फेल से एक ज़ाब्ता बरामद होता है, जो मैं आप हजरात के सामने बयान करना चाहता हूँ। वो ज़ाब्ता ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कोई आदमी अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ चलता है तो उसे इस ज़मीन के ऊपर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अगर हम हदीस के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अगर हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार नहीं सकते, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस आदमी का रुए ज़मीन के ऊपर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जरा सोचिए कि अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर इस दौर के अंदर जिंदा होते और हमारी रविश को देखते, हमारे रहन सहन को देखते, हमारे घर के मामलात को देखते, हमारे चाल चलन को देखते, हमारे घर के अंदर जो फंक्शन और तकरीबात होती हैं, अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते और इन तमाम खुराफात को देखते, तो क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें छोड़ देते? नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलम कर चलता और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतवा सादिर करते और कहते ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो इस ज़मीन के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मंशा के मुताबिक नहीं चल सकता, उसे इस ज़मीन के ऊपर रहने का कोई हक नहीं है। जरा सोचिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फैसला उन लोगों ने नहीं माना। अल्लाह तबारक ताला ने एक आयत को टुकड़ा नाजिल फरमा दिया और अल्लाह तबारक ताला ने फैसला कर दिया कि कोई इस ज़मीन के ऊपर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं है तो वो आदमी मुसलमान नहीं है। ज़रा हम अपने ईमान का जायज़ा लें, अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि कुरान ने नस्सी तौर पर, कतई तौर पर कुरान ने उसको हराम करार दे दिया है, लेकिन हमारी उम्मत का नौजवान तबका उन बुराइयों के अंदर लगा हुआ है और जब उसको रोका जाता है तो हमारी उम्मत का नौजवान तबका उस गुनाह को गुनाह नहीं समझता है। अल्लाह तबारक ताला ने कलाम मजीद के अंदर फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीर, कि हमने तुम्हारे ऊपर खिंजीर को और हमने तुम्हारे ऊपर शराब को हराम करार दे दिया है। लेकिन हमारी उम्मत का ये हाल बन चुका है कि खिंजीर हम नहीं खाते। क्यों? इसलिए कि खिंजीर हराम है, लेकिन हमारी उम्मत का नौजवान तबका शराब को बड़ी शौक से पीता है। क्यों? इस वजह से कि वो खिंजीर को तो हराम समझता है,
لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے ایمان کے اندر، اس کے دماغ کی بھٹی کے اندر اس چیز کی کبھی چنگاری نہیں جلی کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کے ایک قطرے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ ہماری امت کا وہ نوجوان طبقہ کہ کل تک جن کے ہاتھ کے اندر اسلام کا علم ہوتا تھا اور وہ اپنی گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے، جب دریا آتا تھا تو اپنی سنوں سے کہتے تھے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کل تک ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم نظر آتا تھا۔ آج امت کے نوجوان طبقے کے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل نظر آتی ہے، شراب کی بوتل نظر آتی ہے۔ آج ہم اور آپ غیروں کو دشوار کیوں ٹھہرائیں؟ ہمارے دامن کے اندر خود اتنے چھید ہیں کہ اگر ہم رفو کرنے پر آئیں تو کہیں صبح ہو جائیں گی، کہیں صبح ہو جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کے پھپھولے جل پڑے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل پڑے سینے کے داغ سے، گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک مشن دیا تھا، اور وہ مشن یہ تھا کہ کبھی تمہیں شراب کے قریب نہیں جانا ہے، کبھی تمہیں جوا کے قریب نہیں جانا ہے، کبھی تمہیں زنا کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن ہماری امت کا نوجوان طبقہ آج شراب کے اندر 75% پیوست نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کی حالت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم نے اپنے گناہ سے توبہ نہ کی اور اپنے مستقبل کو نہیں سنوارا تو یاد رکھیے گا علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر جس دن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے دور ہو گئی تو اس کی حالت یہود و نصارہ سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھنے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ایمان کی بات آ جائے، یقین کی بات آ جائے، اعتقاد کی بات آ جائے، بھروسے کی بات آ جائے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کے پیچھے سب میں کوئی کھڑا نظر نہیں آئے گا، کوئی کھڑا نظر نہیں آئے گا۔ آج امت کا یہ حال بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس آدمی نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن زندگی میں ایک مرتبہ تھاما ہی نہیں ہے۔ آج یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پھولت پذیر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر وہ احسانات کیے کہ اگر یہ امت اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہو جائے اور محمد الرسول اللہ کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہے تو یہ امت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک دور کے اندر پیدا ہوئے تھے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اسے ایک تنگ کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا جب تک اس عورت کا دم نہ نکل جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد جتنی منحوس رسمیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیر سے رون دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رون دیا۔ اور آج ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں روکا تھا ان باتوں سے ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا ان باتوں سے ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ہم محمد الرسول اللہ کا عاشق ٹھہراتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیزان محترم، ذرا سوچئے اور سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا بہت بابرکت ہے، اور برکت والا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو
अलैहिम आयातिका, कि हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल मबूस कर दिया जो तुम्हें अच्छी बातों की तरफ और हिकमत की बातों की तरफ तुम्हें दावत देता है और बुरी बातों से रोकता है और दानाई की बातें सिखाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए और आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ऊपर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर जो तमाशा किया जा रहा है, जरा सोचिए तो सही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तमाम खुराफात को अपने पैर से रोकने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए थे अपना सही मनहज लेकर, सही तरीका लेकर। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर डीजे बजाया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर केक काटा जा रहा है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा किया था? आज जब किसी को रोका जाता है, किसी को रोका जाता है, तो वो इंसान अकली दलील पेश करता है, वो अकली दलील पेश करता है कि अगर आप उसके सामने दलील रखोगे कि क्या सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया था। हमारा तो ये यकीन है, हमारा ये एतकाद है और हमारे देवबंद का इस बात पर यकीन है और एतकाद है कि जो आदमी इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश नहीं है, उस इंसान के ईमान का कोई भरोसा नहीं। हमारा तो ये यकीन है, हमारा तो इस बात पर एतकाद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आना मुबारक 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 है। सो जाने हमारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। लेकिन जरा सोचिए तो सही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 43 साल तक अल्लाह के रसूल मक्का के अंदर रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के अंदर गुजारे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया, लेकिन सहाबा ने कभी अल्लाह के रसूल की विलादत पर खुशी नहीं मनाई। आज एक नया फैशन चल पड़ा है और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश नहीं होते हैं या झंडा और चरागा नहीं करते हैं, तो उसे यह बताया जा रहा है कि ये लोग सच्चे आशिक रसूल नहीं हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बतला देना चाहता हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तुम हमारी इत्तिबा करो। ला तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु किताबुल्लाह, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताब और हमारी हदीस मुबारका। अगर तुमने इन दो चीज़ों को पकड़े रखा तो तुम समझो हमारी सुन्नत पर हो, हमारे तरीके पर हो, हमारे मनहज पर हो। आज उम्मत का हर तबका कुरान को छोड़ा नजर आता है, हदीस को छोड़ा नजर आता है और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। हमारा बदलाने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 तारीख को इस दुनिया से रुखसत हुए और जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हजरत मलकुल मौत दाखिल हुए और दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर इस्तराहात पर आराम फरमा रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि दरवाजे पर कौन है? मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है? मलकुल मौत ने 3 मरतबा इजाज़त फरमाई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गश्त आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे होश और हवास में नहीं थे, लेकिन बाप की मोहब्बत, शौहर की मोहब्बत, तमाम अज़वाज मुतहरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं। हज़रत फातिमा मौजूद हैं। जब मलकुल मौत ने तीसरी मरतबा दरवाजे पर दस्तक दी तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि दरवाजे पर कौन है? आज हमारा बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है, आज हमारे बाप का दम निकल रहा है, आज हमारा बाप दुनिया से अलविदा कह रहा है, और कौन है जाहिल आदमी जो दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाज़ा पीट रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह के ऊपर अपना हाथ रखा और फरमाया, बेटी ऐसा न कहो, दरवाजे पर वो है जिसने आज तक किसी इंसान से इजाज़त नहीं ली है।
बिलाखिर हज़रत मलकुल मौत घर के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, आपका वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला आपसे मुलाकात के मुश्ताक हैं, फरिश्ते आपसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। जरा अंदाज़ा लगाइए, अगर आपके दिल के अंदर ईमान की बशाशत थोड़ी सी भी है, अपने दिल का जरा जायज़ा लीजिए कि एक तरफ तमाम अज़वाज मुताहरात मौजूद हैं, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं, मलकुल मौत मौजूद हैं, हज़रत जिब्राइल मौजूद हैं और हज़रत जिब्राइल की आंखों से आंसू जारी हैं। किस वजह से हज़रत जिब्राइल रो रहे हैं? ये सोचकर कि आज के बाद दुनिया के अंदर हमारा आना बंद कर दिया जाएगा। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए तो आज के बाद इस दुनिया के अंदर जिब्राइल का आना बंद कर दिया जाएगा। जिब्राइल रो रहे हैं, तमाम अज़वाज मुताहरात रो रही हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, मलकुल मौत, अगर वक्त पूरा हो चुका है तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चलने के लिए तैयार हूँ। जरा अंदाज़ा लगाइए कि जिब्राइल रो रहे हैं, अज़वाज मुताहरात रो रही हैं और मलकुल मौत इस बात पर इसरार कर रहा है कि अल्लाह के रसूल, अगर आप चलें तो मैं आपको ले चलने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मलकुल मौत ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज करना शुरू किया, हदीस की किताबों के अंदर नकल किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू जारी हो गए और फरमाया, मलकुल मौत, हमें तकलीफ हो रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, भला क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत, तू तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ हो रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। 1000 मरतबा मरहबा, 100 मरतबा मरहबा, जितना दुरूद व सलाम पेश किया जाए कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के अंदर आकर दुनिया को एक मिशन दे दिया, दुनिया को रहने और सहने का एक तरीका दे दिया। आज उम्मत का ये हाल बन चुका है कि नाम लेते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, पैरोकार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, लेकिन हमारे दिल के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं है। इश्क तो इसको कहते हैं कि मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस चल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस चल रही थी। ज़रा हमारी बात को तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत काम की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं और सहाबा कहाँ थे और ताबईन कहाँ थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस चल रही थी। एक शहजादा कहीं से आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानवे तलम्मुस हो गया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो आदमी आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं फला मुल्क से आया हूँ, हमारे बाप ने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। आप किसी गुलाम को, आप किसी खादिम को, आप किसी भेजने वाले को भेज दीजिए और वो आदमी वो तोहफा उठा लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिरादर निस्बती हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा किया और फरमाया, माविया, इनके साथ चले जाओ, ये शहजादा कहीं से आया है, इसके बाप ने हमारे लिए तोहफे का सामान भेजा है, इसके साथ चले जाओ और तोहफे का सामान ले आओ। हमारी बात को तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने पर आमादा हो गए, लेकिन मामला ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दूसरे दरवाजे की तरफ किया था और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जूते दूसरे दरवाजे की तरफ रखे हुए थे। अब माविया सोच के अंदर पड़ गए कि अगर इधर जाता हूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के ऊपर अमल होता है और अगर इधर जाता हूँ तो जूते मिलते हैं। माविया सोच के अंदर पड़ गए, लेकिन वो हम जैसे गुलाम नहीं थे, वो सहाबा थे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार गुलाम थे। हजरत मुआविया जाने पर आमादा हो गए और उसी दरवाजे से निकल गए जिस दरवाजे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। मुआविया निकल पड़े, नंगे पैर निकल पड़े। जब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरब का वो तपती हुई रेत और अरब का जलता हुआ सेहरा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर को जब जलाकर राख कर रहा था, तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शहजादे से फरमाया, मियाँ आप घोड़े के ऊपर सवार हैं, आप अपने पैर की जूती हमें दे दीजिए, आप अपने पैर की जूती हमें दे दो। तो उस शहजादे ने कहा कि मैं अपने पैर की जूती मोहम्मद के गुलाम को देने के लिए तैयार नहीं। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप अपने पैर की जूती हमें नहीं देते हैं तो कम से कम आप हमें अपने घोड़े पर बैठा लीजिए। तो शहजादे ने कहा कि मैं इस घोड़े पर मोहम्मद के गुलाम को बैठाऊं, ये शहजादे का घोड़ा है, घोड़े की तौहीन हो जाएगी। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ठीक है, आप हमें नहीं बैठाते हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और सामान लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सामान पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने जब मुआविया के पैर की तरफ देखा तो अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाया और दुआ दी कि मुआविया हमारी उम्मत का बेहतरीन जवान है। जरा सोचो तो सही। और हजरत मुआविया को दुआ दी कि मुआविया आपने जूते क्यों नहीं पहने? फरमाया अल्लाह के रसूल, जूते हमारे दूसरे दरवाजे की तरफ रखे थे, आपने इशारा दूसरे दरवाजे की तरफ किया था। अगर मैं इधर जाता तो आपके हुक्म के खिलाफ होता और अगर मैं इधर जाता तो नंगे पैर जाता, लेकिन हमने जूते न पहनते हुए आपके फैसले पर अमल किया और नंगे पैर निकल पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को गले से लगाया और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें दीन की अमान में रखे और अल्लाह तबारक तआला तुमसे दीन का काम ले। चुनांचे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी की दुआ के बदौलत अल्लाह तबारक तआला ने वो जंगे फतेह करवाई, वो इस्लाम का आलम बुलंद करवाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहरी जंगे, पानी की जंगे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर हुई। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चुनांचा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर अमल करता है। और हमारा और आपका मामला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि शराब हराम है, जुआ हराम है, सूदखोरी हराम है, लेकिन हमारा मामला ये बन चुका है कि आधा तीतर आधा बटेर कि हम थोड़ी चीज़ तो मानते हैं और थोड़ी चीज़ नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी अल्लाह तबारक तआला की निगाह के अंदर मुनाफिक है और मुनाफिक के ईमान का एतबार अल्लाह तबारक तआला की बारगाह के अंदर नहीं है। हम दुनिया के अंदर आए हैं, अल्लाह तबारक तआला ने हमें मुख्तसर ज़िंदगी दी है। हमारे ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को पहचानें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेकर आए थे उस मिशन को पहचाने और इस बात को पहचाने कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया था, अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर हमें क्यों भेजा था। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को दुनिया के अंदर खाने और कमाने के लिए पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इस दुनिया के अंदर इस रोए ज़मीन के ऊपर इंसान को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अगर हम इबादत के ज़रिए, रियाजत के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला के हम्द और शुक्रगुजारी के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला का शुक्र बजा लाते हैं, तब तो हमारी ज़िंदगी का हक अदा होता है। वरना हमारा दुनिया के अंदर आना बातिल, हमारा ज़िंदगी गुजारना बातिल, हमारा दुनिया के अंदर रहना बातिल। और याद रखिएगा अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन हमसे हमारी ज़िंदगी के बारे में भी पूछेगा। अल्लाह तबारक तआला हमसे हमारी उम्र के बारे में पूछेगा। अल्लाह तबारक तआला हमसे हमारी जवानी के बारे में भी पूछेगा, हमसे हमारी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा और राई का अल्लाह तबारक तआला हमसे हिसाब लेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा हाल ये है कि हम घर में हिसाब दे नहीं सकते, अल्लाह तबारक तआला को कैसे हिसाब देंगे।
میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنی زندگی کو سمجھیے، اپنے مقصد کو پہچانیے، اپنی حیات کو پہچانیے، اور دنیا کے اندر کس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچانیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا دنیا کے اندر آنا بھی قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا کے اندر آنا قبول فرمائے، آپ کی عبادت اور ریاضات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔